Good afternoon, students. So today I am here with another topic that is popular practice of Islam. As you know that we are moving with Sufism now. So one part of it is popular practice of Islam also. So in this we are going to now see that ki Islam development in the Islamic tradition was not only left with the ruling elites only, but also it spread to very far off places also in the continent. Permeated means flourished far and wide through the subcontinent among the different social groups. Strata means social groups like peasants, artisans, warriors. Warriors means those who were fighting the wars. Then merchants. These are few names, but there were some more different social groups among which this Islamic religion slowly started spreading. And all those who adopted Islam, they accepted in principle the 5 pillars also of Islam. जो 5 रूल हैं इस्लामिक के इस रिलीजन के. One is that कि there is only one God, that is Allah. Second, Prophet Muhammad is his messenger, and to him they were calling that Shahada. So offering prayers 5 times in a day, that was namaz or salal. So giving alms means donations, that is daan dena, so that is called zakat. Fasting during the month of the Ramzan, that is called swam, ठीक है. And performed a pilgrimage to Makkah, that is called hajj. So ये 5 rules जो strict Muslim था, those who were following strictly and respecting a lot to Islam, they were following these 5 principles of Islamic tradition. So these universal features were not only overlaid with diversities in practice. These all features were there in Islam, but as I told you bete ki this Islamic religion was also divided into 2 parts, that is Sunni and Shia. So Sunni were those people, those who were worshipping Prophet Muhammad, and Shia were those groups of the people in Islam, so those who were following or worshipping the Ali. Fine, these Prophet Muhammad and Ali were the brothers. And influence of a local customary practices of convert from different social millennium, and इनकी practices जो थी, जो practice इनके belief थे, that was also different from each other. For example, the Khozas, a branch of the Islamic Shia sect. Shia का एक अलग पार्ट है खोजा, जिन्होंने डेवलप किया नए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को स्प्रेड करने के लिए. कौन से आइडियाज़? इस्लामिक आइडियाज़ फ्रॉम द कुरान थ्रू इंडिजिनस लिटरेरी जीनस. लिटरेरी जीनस मीन्स कुरान के कुछ आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने वहाँ के पर्टिकुलर लोगों की हेल्प ली. एंड दिस इंक्लूड द ज्ञान. ज्ञान मतलब संस्कृत वर्ड है ज्ञान, जिसका मतलब होता है नॉलेज. डिवोशनल पोएम्स उन्होंने किसके थ्रू इसको स्प्रेड किया? जो वहाँ के लोगों की, इंडिजिनस लोगों की पर्टिकुलर लैंग्वेज थी. फॉर एग्जांपल उन्होंने वहाँ के डिवोशनल सॉन्ग्स मीन भक्ति सॉन्ग्स विच वर संग इन पंजाबी, मुल्तानी. एज यू नो दैट कि दीज एरियाज ऑफ दिस अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, देयर वॉज द पीपल दोज वर स्पीकिंग दिस टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी. देन कच्छ की लैंग्वेज जो गुजरात के साइड्स में, those who are speaking Kutch language, coastal areas of Gujarat. Then Hindi language, already it was very prevalent in India. Gujarati was also there in Gujarat. So these all devotional songs of this Islam were also sung in special ragas during the daily prayer meetings. So same way में मुस्लिम्स ने भी ऐसे ही अपने डिवोशनल सॉन्ग्स को और अपने डिवोशनल हिम्स को उन्होंने वहाँ की ऑर्डनरी पीपल की लैंग्वेज में उन्होंने उसको स्प्रेड करना शुरू किया in the form of singing and music. So elsewhere, other Arab Muslim traders who settle along the Malabar coast, as I told you few days back, it is the coastal area of Kerala. They adopted the local language of that Malabar coast के लोगों की जो local language थी, that was Malayalam in Kerala. So they used that language to spread their religion. They also adopted local customs such as matrilineal. Matrilineal का मतलब होता है where the head of the family is mother. And matrilocal residence means where the wife after marriage she stay with her parents, and her children were also staying with the mother only, and husbands used to stay with the wife in her parents house. Otherwise in our tradition the wife goes to husband's house, but here the husband comes to
wife's house with her parents to live, so that is called matrilocal residence. So in Muslim traders ने भी उन्हीं को follow किया, because those who were settled in that Malabar coast, they also followed the some of the practices of that particular local area, and complex blend of a universal faith with local traditions. मतलब ये इनका जो इस्लामिक ट्रेडिशन था वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, बिकॉज दे वर आल्सो फॉलोइंग द यूनिवर्सल फेथ, मतलब वो 5 प्रिंसिपल्स आल्सो, एंड इवन द फेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकल एरिया के ट्रेडिशंस को भी वो फॉलो कर रहे थे. और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए इवन उन्होंने वहाँ के आर्किटेक्चर और मॉस्क को भी उन्होंने फॉलो किया. जैसे मॉस्क आपको बताइए कि किसको कहते हैं, मस्जिद को. सो सम आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मॉस्क आर यूनिवर्सल. ये मॉस्क के भी कुछ फीचर ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. आज भी अगर हम बिल्डिंग को देखें, किसी को मस्जिद को या गुरुद्वारे को या टेंपल को, उसके स्ट्रक्चर को बाहर से देख के वी जस्ट आइडेंटिफाई, और भी हम समझ जाते हैं कि दिस इज़ गुरुद्वारा, दिस इज़ टेंपल, दिस इज़. सो व्हाट इज़ द रीज़न दैट? सो रीज़न ये है कि उसका स्ट्रक्चर जो बाहर से कैसे बनाया गया. तो ऐसे ही कुछ फीचर्स मॉस्क के भी थे, सच एज़ देयर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मक्का, कि हमेशा ये जो मस्जिद होती है उसका जो फेस होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दे कीप इट ऑन द साइड ऑफ मक्का. मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम कहते हैं कि जहाँ से सूरज उदय होता है उस तरफ को मुंह होना चाहिए, दैट इज़ शुभ. तो उनका ये कहना है कि जिस तरफ मक्का होता है उस तरफ उसका मॉस्क का मुंह रखना, दैट इज़ वेरी गुड ओमन, मतलब शुभ माना जाता है. सेकेंड थिंग वॉज देयर मेहराब. मेहराब भी एक स्ट्रक्चर है. मेहराब वो प्लेस होती है जहाँ पे वो प्रेयर करते हैं, अंदर खुला प्लेस, ठीक है. दूसरी है मिनबार, जिसको कहते हैं पल्पिट, ठीक है. वो भी उसके ऊपर का गुबंद जिसको हम कहते हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि ये वेरिएशन शो करती है. मॉस्क को हम बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं उसके बाहर के आर्किटेक्चर से. सो सेम वे में दे सेड रूफ एंड बिल्डिंग मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग दिस, दैट इज़ आल्सो डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. सो ये कुछ फीचर्स थे मॉस्क के. सो नाउ द नेम्स फॉर द कम्युनिटीज़, कि इनमें इन्होंने इन कम्युनिटीज़ को नेम कैसे दिए हैं. वी ऑफन टेक द टर्म हिंदू एंड मुस्लिम फॉर ग्रांटेड. मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कहते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं हम उनको कहते हैं हिंदूज, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वी ऑलवेज से दैट कि ही इज़ मुस्लिम, एज लेबल्स फॉर द रिलीजियस कम्युनिटीज़. ये हमने लेबल कर दिया उनको. एंड दीज टर्म्स डिड नॉट गेन करेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. कहते हैं कि इसको बहुत लंबे समय से इस करेंसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली है. करेंसी का मतलब यहाँ पर है कि जैसे करेंसी होती है ना जिसको इंपॉर्टेंस मिलती है अलग अलग रीजन्स में. सो वो कहते हैं कि ये ऐसी करेंसी है जिसको बहुत लंबे समय से इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी लोगों ने नहीं दी है हिंदू और मुस्लिम के रूप में, बट ये नाम अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह से आगे आते रहे हैं. हिस्टोरियंस हु हैव स्टडीड संस्कृत टेक्स्ट एंड इवन द इंस्क्रिप्शंस डेटिंग बिटवीन 8th एंड 14th सेंचुरी के बीच की जितनी संस्कृत की टेस्ट और उन्होंने इंस्क्रिप्शंस पढ़ी है जो लिखी गई थी उस टाइम में. सो दे पॉइंट आउट दैट कि टर्म मुसलमान, जिसको हम आज मुस्लिम भी कहते हैं, वॉज वर्चुअली नेवर यूज्ड, कि कभी भी पहले टाइम में मुसलमान और मुस्लिम टर्म कभी भी उस समय में यूज़ नहीं किया गया था जिस समय की अभी हम बात कर रहे हैं. इंस्टेड पीपल वर ओकेजनली आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ द रीजन फ्रॉम विच दे कम. ठीक है, उनको किससे पहचाना जाता था, किस रीजन को बिलोंग करते हैं. नॉट कि ही इज़ मुस्लिम, ही इज़ मुसलमान, ही इज़ सिख, और ऐसे नहीं करते थे वो, बल्कि किस रीजन को वो बिलोंग करते थे उसके ऊपर उनका नाम डाला जाता था. सो द टर्किश रूलर्स वर डेजिग्नेटेड एज तुर्किश. उनको टर्किश को रूलर्स को तुर्शका कहा जाता था. तुर्शका मतलब ये तुर्क से आए हैं, ठीक है. टर्किश रूलर्स को तुर्शका कहा जाता था. तिजिका वर पीपल फ्रॉम तजाकिस्तान, जो तजिका कहते थे तजाकिस्तान के पीपल्स को. पेरिशिका वर द पीपल फ्रॉम पर्शिया, मतलब जो लोग पर्शिया से आते थे उनको कहते थे पेरिशिकास. नॉट कि दे आर मुस्लिम्स और मुसलमान्स और द सिक्स, नॉट इन दैट वे. सो समटाइम्स टर्म्स यूज टू अदर पीपल वर अप्लाई टू द न्यू माइग्रेंट्स आल्सो. नए लोगों के लिए भी यूज़ किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल द तर्क्स एंड अफगान्स वर रेफर टू एज शाकाज आल्सो, जो हमने पहले भी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, शाका डायनेस्टी. सो वो कहते हैं कि ये टर्म यूज़ किया गया था तर्क और अफ़गानी टुगेदर, इन दोनों के लिए शाकास. एंड इवन द यवनास, ये टर्म यूज़ किया गया है ग्रीक लोगों के लिए, ठीक है. सो अ मोर ग्रांटेड टर्म फॉर दीज माइग्रेंट कम्युनिटीज़ वॉज मलेच भी कहा जाता था उनको. अब ये मलेच इंडिकेटिंग दैट दे डिड नॉट ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी एंड स्पोक लैंग्वेजेस दैट वर नॉट डिराइव फ्रॉम संस्कृत. और हमारे पता है आपको हिंदू धर्म में मलेच किनको कहा जाता है? मलेच कहा जाता था उन लोगों को जो उनके वो सोशल ऑर्डर में नहीं आते थे, कास्ट सोसाइटी में नहीं आते थे, और जो नॉट ऑब्जर्विंग द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी. और ये जो कास्ट सोसाइटी वाले जो उनके रूल्स एंड नॉर्म्स थे ना उसको जो फॉलो नहीं करते थे.
एंड स्पोक लैंग्वेज दैट वॉज नॉट डिराइव फ्रॉम संस्कृत, और जो वो लैंग्वेज बोलते थे जो संस्कृत से नहीं बनी थी। आपको पता है काफ़ी सारी ऐसी लैंग्वेज है जो संस्कृत से बनी है, देवनागरी हो गई, भोजपुरी हो गई, ये काफ़ी लैंग्वेजेज हैं जो संस्कृत में से निकली है। इवन कहते हैं कि इंग्लिश के कई वर्ड्स हैं जो संस्कृत में से ही आए हैं। तो वो कहते हैं कि जो लोग वो लैंग्वेज नहीं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं निकली थी, और वो लोग जो कास्ट सोसाइटी के रूल्स को नहीं मानते थे, ऐसे लोगों को मलेच्छ कहा जाता था उस समय में हिंदू ट्रेडिशन में। ठीक है, सो सच टर्म्स समटाइम्स हैड अ derogatory connotation, but they rarely denied a distinct religious communities of Muslims in opposition to Hindus. बट कहते हैं कि दे रियरली डिनोट अ डिस्टिंक्ट रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम। जैसे हमारे हिंदूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलती हैं, बट दे सेड कि मुस्लिम्स में इतनी ज़्यादा रिलीजियस कम्युनिटीज़ देखने के लिए नहीं मिलती। एज वी सॉ इन द टर्म हिंदू वॉज यूज बाय वेराइटी ऑफ वेज, कि हिंदू टर्म को वेराइटी ऑफ वेज में यूज़ किया गया। कैसे? जैसे कि आपको पता है कि हिंदू वर्ड कहाँ से निकला है? सिंधु से, और सिंधु क्या था? सिंध रिवर, जो सिंधु रिवर के उसमें रहते थे, ऑन द बैंक्स ऑफ सिंधु रिवर। सो उन लोगों ने उनको सिंधु कहा था पहले, उसी से हिंदू वर्ड निकल आया। फाइन, वैसे हिंदू कोई पर्टिकुलर ऐसा वर्ड नहीं है, ये सिंधु में से ही छोटा सा वर्ड हिंदू निकला है। सो वो कहते हैं कि ये सारे जो डिफरेंट जो नेम्स हिंदू में डिफरेंट कम्युनिटीज़ आगे जाकर बनी, ऐसी मुस्लिम कम्युनिटीज़ में कोई ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है। अब नाउ लेट्स सी दैट हाउ दिस ग्रो सूफिज़म, ये सूफिज़म कैसे आया। In the early centuries of Islam, group of religious-minded people called Sufis turned to asceticism and mysticism in protest against the growing materialistic of the caliphates as a religion and political institution. इसका मतलब ये है कि कुछ ग्रुप्स जो कि बड़े रिलीजियस माइंडेड थे, धार्मिक विचारों वाले थे, वो स्लोली उन्होंने अपने आप को किस में टर्न कर लिया? असैटिज़म में, मतलब वैराग में, जिन्होंने सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिनाउंस करके, त्याग के, वो क्या बन गए? एसेटिक। फाइन, और उन्होंने किसको प्रोटेस्ट किया? ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए थे, कि वैसे वो कैलिफ थे, खलीफा थे, रिलीजियस लीडर्स थे, लेकिन फिर भी पोस्ट के ऊपर, स्टेटस के ऊपर हमेशा उनकी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो इनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। किन्होंने? ये रिलीजियस माइंडेड पीपल ने, जिन्होंने अपने आप को सूफी संतों का नाम दिया बाद में। सो दे वर क्रिटिकल ऑफ द डॉगमेस्टिक डेफिनेशंस एंड स्कोलास्टिक मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग द कुरान, और उनको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी कि जो ये कुरान के जो रूल्स और रेगुलेशंस को अपने वे से इंटरप्रेट करके, उसको समझ के, और अपने वे से उसको, डिफरेंट वे से उसको लोगों तक पहुंचाते थे। डॉगमेटिक मतलब होते हैं जो लोगों के लिए बड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसको लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुरान को भी और सुन्ना ट्रेडिशन को भी। सुन्ना ट्रेडिशन मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलोअर करते हैं, उनको सुन्ना ट्रेडिशन कहते हैं सूफी में। सो दे अडॉप्टेड बाय द थियोलॉजिस्ट। इंस्टेड दे लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग साल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स। उनका भी यही मानना था कि यू विल गेट साल्वेशन। साल्वेशन मतलब मोक्ष, means freedom from this circle of life and death. They also said that कि this will be earned by the religious people by devotion and love for God, कि अगर भगवान को आप अपने आप को समर्पित कर देते हो, भगवान के लिए बहुत आप में रिस्पेक्ट और लव है, और उनकी सारी दी हुई कमांड्स को अगर आप फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. They were also following the same. So फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद व्हेन दे रिगार्डेड एज अ परफेक्ट ह्यूमन बींग. आपको भी पता है प्रॉफिट मोहम्मद ने भी अपनी कुर्बानी दी थी अपने ट्रेडिशन के लिए, अपने इस्लाम धर्म के लिए. जैसे सिखों में भी हैं काफ़ी गुरुओं ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी अपने धर्म को बचाने के लिए. हिंदू में भी बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे. तो सेम वे में दे सेड कि दे वर ऑल्सो फ्रॉम द सेम ट्रेडिशन ओनली. बट उनका वे ये था कि जो लोग लोगों को धर्म के नाम पर लूटते थे, धर्म के नाम पर उनको मैनिपुलेट करते थे, ऐसे लोगों के देवर वेरी अगेंस्ट. एंड सूफीज द सॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस. इसलिए उन्होंने कुरान को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझकर उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया लोगों को और स्प्रेड किया लोगों में. खानकाज एंड सिलसिलास. खानकाज वो प्लेस होती हैं जहाँ पे बेटे सारे सूफ़ी जितने भी सूफ़ी पीपल होते थे ना, ये सारे गैदर होके अपनी डिस्कशंस और डिबेट्स करते थे. और सिलसिला होता है सीक्वेंस ऑफ देयर प्रीचिंग्स, सीक्वेंस ऑफ देयर कंपोजिशंस. सो बाय 11th century सूफीज़म इवॉल्व इनटू अ वेल डेवलप्ड मूवमेंट विद द बॉडी ऑफ लिटरेचर ऑन कुरानिक स्टडीज़ एंड सूफी प्रैक्टिसेस. 11th century तक सूफीज़म जो था वो इवॉल्व हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मूवमेंट हो गई उसकी विद द बॉडी ऑफ लिटरेचर. उनके पास एक ऐसा उन्होंने लिटरेचर बना दिया जिसमें कुरानिक सारी स्टडीज़ और सारी सूफीज़म प्रैक्टिसेस कंपाइल्ड कर दी गई थी. एंड इंस्टीट्यूशनली द सूफीज़ बिगैन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज़ अराउंड द हॉस्पिक्स और खानखास. और इन्हीं खानखास के मतलब
जिसमें वो सारी टीचिंग्स और अपनी प्रीचिंग्स और अपनी डिस्कशन डिबेट्स करते थे, उसके अराउंड ही उनकी सारी कम्युनिटीज़ जो थी वो डेवलप होनी शुरू हो गई, जो उनको मानते थे। बाय अ टीचिंग मास्टर नोन एज शेख, और उनका टीचिंग मास्टर कौन कहलाता था? जो उनका हेड होता था इस खानका में, उसको कहते थे शेख, पीर और मुर्शिद। ये सारे बेटे उर्दू के वर्ड्स हैं। शेख जिसको अरेबिक में कहा जाता है, और इनको पीर भी कहा जाता था और इनको मुर्शिद भी कहा जाता था इन पर्शियन लैंग्वेज में। मुर्शिद पर्शियन वर्ड है। ही एनरोल डिसाइपल्स, और ये जो पीर होते थे या फिर शेख होते थे उस खानका के, ये सारे लोगों को अपने में अरेंज करते थे, उनको कलेक्ट करते थे, एनरोल करते थे अपने ट्रेडिशन में। एनरोल करना मतलब उसको शामिल कर लेना अपने ट्रेडिशन में। एंड अपॉइंटेड अ सक्सेसर, फिर अपने बाद वो अपना सक्सेसर भी डिक्लेयर करते थे, अपॉइंट करते थे, जिसको कहते थे खलीफा। ठीक है, मतलब अपने मरने के बाद अपने टाइम पर ही वो अपना सक्सेसर जो था वो अपॉइंट कर देते थे, जिसको वो कहते थे खलीफा, कि आफ्टर मी ही विल बी द खलीफा। ये शेख मतलब जो हेड ऑफ द खानका होता था। ही एस्टैब्लिश रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट, और वो लोगों को रूल्स भी बताते थे कि अगर उनको इस ट्रेडिशन को मानना है तो उनको कौन से रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, और रूल्स जो होते थे वो बिल्कुल डिफरेंट होते थे बिटवीन ले पर्सन मतलब ऑर्डिनरी पीपल एंड द मास्टर। दोनों के बीच की इंटरेक्शन, उनके बीच के इंटरेक्शन के लिए भी डिफरेंट रूल्स होते थे। शेख और जो ऑर्डिनरी पीपल है, दोनों के बीच के रूल्स रेगुलेशंस भी डिफरेंट होते थे। तो सूफ़ी सिलसिलास बिगैन टू क्रिस्टलाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। अब ये जो सूफ़ी सिलसिलास मतलब कंपोजिशंस थी, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट वे से ये स्प्रेड होनी शुरू हो गई। एंड द वर्ल्ड सिलसिला लिटरली मीन्स चेन, जो कि सिग्निफाई इंपॉर्टेंस देता था कंटिन्यूस लिंक बिटवीन द मास्टर एंड डिसाइपल। मास्टर और डिसाइपल के बीच में जो भी डिबेट डिस्कशंस होती थी उसको सबको कंपाइल करना, स्ट्रेचिंग एज एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनोलॉजी। और ये मास्टर से डिसाइपल, डिसाइपल से आगे टू द प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद से चलते चलते आके जो सीक्वेंस बना है उसको सिलसिला कहते हैं। इट वॉज थ्रू दिस चैनल दैट स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग्स वर ट्रांसमिटेड। किस में ट्रांसमिट करते थे वो? दिस पावर्स वर ट्रांसमिटेड टू डिवोटीज। मतलब उनका ये कहना था कि अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो, प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स के ऊपर चलकर उनके आगे बनाए गए जो ये शेख हैं और शेख आगे जो अपना सक्सेसर खलीफा बनाते हैं, अगर उनको आप फॉलो करते रहोगे और स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे उनके रूल्स और रेगुलेशंस को, तो आपको ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल पावर्स मिलती रहेंगी और उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलती रहेंगी। एंड स्पेशल रिचुअल्स ऑफ इनिशिएशन वर डेवलप्ड इन विच इनिशिएट्स टुक एन ओथ ऑफ। और इससे क्या होता था, जैसे आपने देखा हिंदू धर्म में भी लोग गुरु धारते हैं, गुरु को अपना एक गुरु बना लेते हैं। सेम में यहाँ पर भी जब कोई सूफी संत अपना कोई गुरु बनाता था ना, उसके लिए एक रिचुअल होता था, एक प्रैक्टिस होती थी जिसको कहते थे इनिशिएशन। उसमें वो जो डिवोटी होता था ना, वो एक ओथ लेता था एलिगेंस की। एलिगेंस का मतलब होता है लॉयल्टी, कि वो मैं अब इसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन में लॉयल रहूँगा। ठीक है, और उसको कैसे कपड़े पहनने पड़ते थे? बिल्कुल सिंपल से कपड़े जिसमें पैबंद, जैसे फटा हुआ कपड़ा तो उसके ऊपर हम दूसरा छोटा सा कपड़ा लगा के उसको करते हैं ना, रफू करना जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं पैचेस लगाए हुए कपड़े। मतलब नॉट अ, it means that कि he has renounced the world and now he has only submitted himself to the that particular tradition and he had to shave his hair also. So when the sheikh died, और जब ये शेख डेथ हो जाती थी मास्टर की, जो इनके खनखा का जो हेड होता था शेख, देन इस टोम्ब, उनकी जो कब्र बनाई जाती थी जिसको दरगाह कहते थे पर्शियन टर्म्स में, मीनिंग कोर्ट। ठीक है, ये सेंटर बन जाता था उसके डिसाइपल्स के लिए, मतलब जो उनके भक्त थे उनके लिए वो जगह बन जाती थी, एक पवित्र जगह जिसके ऊपर लोग मेले लगाते हैं, वहाँ जाकर लोग पूजा करते हैं, हार चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो बन जाती थी टोम, जिसको हम कहते हैं कब्र या फिर दरगाह। आज भी देखो होगा आपने, वहाँ पे लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। सो ये ऐसे इनके हेड होते थे, इनके खनखा के, जो अपना गुरु मान लेते थे और उसके आगे वो उसको फॉलो करते थे। दिस एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज, और इसने आगे किया पिलग्रिमेज की प्रैक्टिस को, मतलब धार्मिक यात्रा पे जाना, वो भी आगे आगे बढ़ता गया। पर्टिकुलरली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, फिर लोग क्या करते थे, इस जगह के ऊपर उनकी डेथ एनिवर्सरी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उस जगह पर लोग पूजने के लिए जाया करते थे, पिलग्रिमेज धार्मिक यात्रा पे जाया करते थे। पर्टिकुलरली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी और मैरिज, जिस दिन उनकी मैरिज हुई थी, या फिर कोई भी ऐसा उनका पर्टिकुलर दिन होता था ना, उस दिन लोग वहाँ पर ज़रूर उस जगह के ऊपर माथा टेकने के लिए या फिर अपना होमेज पे करने के लिए जाया करते। दिस वॉज बिकॉज पीपल बिलीव दैट इन डेथ सेनीज वर यूनाइटेड विद गॉड, कि ये जो जब डेथ हो जाती है तब ये सेंट सारे जो हैं वो किस में यूनाइट हो जाते हैं,
गॉड में। तो इसका मतलब कि ये भी अब गॉड के बिल्कुल पास में बैठे हैं। अगर इनसे हम कुछ मांगेंगे तो डेफिनेटली ये पूरा हो जाएगा। यही एक रीज़न होता है जब ये लोग दरगाह पर या फिर कोई भी धार्मिक प्लेस पर जब ये लोग जाते हैं। सो दिस प्लेसेस देन बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस of the worship, khankas, and even the silsilas, which were the compositions. Now what was there in the outside these khankas? Some mystics initiated movements based on a radical interpretation of Sufi ideas. Many scorned the khankas and look to mendicancy and observed celibacy. और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस खानका से बाहर थे, मतलब कुछ तो ये खानका को बिलीव करते थे और उसमें डिबेट डिस्कशन जो भी होती थी उसको फॉलो करके शेख को अपना हेड मानते थे। उससे बाहर भी कहते एक दुनिया थी जिसमें लोगों ने सेलिबेसी मतलब असेटिज़म, जो बिल्कुल किसी भी चीज़ में ऐसी में बिलीव नहीं करते थे, कोई रिचुअल्स किसी भी चीज़ में वो बिलीव नहीं करते थे। एंड दे इग्नोर्ड रिचुअल्स एंड ऑब्जर्व्ड एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ एसेटिज़म, मतलब जिन्होंने सारे रिचुअल्स वगैरह, कोई ऐसे रिचुअल रीति रिवाज या पूजा पाठ ऐसे में किसी में बिलीव नहीं करते थे ये सूफी संत, बट एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ एसेटिज़म। एसेटिज़म मतलब तप करना, तपस्या करना। एंड दे वर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, लाइक कलंदर्स भी कहते हैं उनको, ठीक है, मदरसास भी कहते हैं, ठीक है, मदारिस भी कहते हैं, मलंग भी कहते हैं। आपने देखा होगा मलंग मलंग मलंग, तो वो ऐसे गाते हुए चल पड़ते होते हैं। हल्दरीज भी कहते हैं, इनको ये नाम दिया गया कलंदर्स वगैरह। बस इनका काम था कि इनको जहाँ पे खाना बैठ आराम करना है आराम किया, थोड़ा सा जो खाने के लिए मैंने खाया, फिर ऐसे गाते हुए चलते रहते हैं। ये एक सेकंड था ट्रेडिशंस का सूफिज़म में। एक तो था जो खानका से रिलेट हो गए और दूसरे ये थे जो उन्होंने खानका से बिल्कुल अपने आप को अलग करके दे इग्नोर दोज ऑल रिचुअल्स, ठीक है। सो दिस वॉज दे वर ऑफन रेफर टू एज टू बी अ शरिया, इनको शरिया कहा जाता था, इन कंट्रास्ट टू द बाय शरिया सूफीज हु ऑक्यूपाइड विद इट, ठीक है। सो सुन्नीज एंड एक हो गया आपका शरिया, ठीक है, इन कंट्रास्ट टू द बी शरिया सूफीज हु कंपाइल्ड विद इट। सो अब द नेक्स्ट टॉपिक है कि चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट। अब एक चिश्तीज भी हुए हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में। ऑफ द ग्रुप्स ऑफ सूफीज हु माइग्रेटेड इन इंडिया इन लेट 12th century, द चिश्तीज वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। दिस वॉज बिकॉज दे अडॉप्टेड सक्सेसफुली टू द लोकल एनवायरनमेंट, क्योंकि उन्होंने बड़ी आसानी से जिस भी जगह पर गए वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट को दे अडॉप्टेड। एंड इस लोकल एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स हैं जो हमारे इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशंस में देखने के लिए मिलते हैं, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन, गुड बाय।